bro, what's up? All well, Arna. Did you see my Instagram post? Of course, Arna. I've seen it. But how are you? I'm fine. Which documentary are you talking about? Well, I'm talking about the social dilemma. It's enlightening, thought-provoking, and ultimately a call to take some serious actions. Do you know that the creators of these platforms doesn't even use these platforms themselves? Is it so? Yes, you heard me right. They don't use it, but make sure that you use it every day. Now I recall that I had also read that many people who work in the tech industry, including at Google, Facebook, Twitter, Instagram, and other platforms, don't allow their own children to use social media. Limit their screen time, but not for us. Why? Now let me tell you a fun fact that Mark Zuckerberg doesn't handle his own FB account. The Ambanis don't use their own SIM cards. Such an irony, don't you think? Oh my god, are you serious? Yes, and the documentary, The Social Dilemma, explores the dangerous impact of social networking on humans, with tech experts sounding alarms on their own creations. Arna, I was wondering that why do I get packages from Make My Trip whenever I think about vacations? Because they offer surprisingly accurate personal recommendations that show up on your screen. Well, they are proof that search engines and social media platforms have evolved into a sophisticated surveillance system with user privacy under constant threat. Arna, what do they know that we may not know? Why so many people are addicted to their devices? Well, they are identified by sophisticated algorithms, and then people's attention is manipulated to get them staying logged in, engaged, and primed for advertising and targeted newsfeeds. Oh wait, let me check my Instagram post. What happened? I got very few likes. So sad. But beware about it because it was intended to spread positivity and good feelings. The team probably knew that the use of the button could be used to track a user's interest and more kind of the same information could be fed to them. But they might have not realized that a like could turn into a mark of popularity and lack of one would be an assault on the self-esteem. And it is a growing concern among the mental health professionals and child advocates about the like buttons of the social media world. They say kids cry for validation and popularity on services like Instagram will lead to anxiety, depression, and low self-esteem. And I felt the same when people didn't like my reel. By the way, the tech people call this data mining attention extraction. The goal is to keep you engaged for as long as possible. And now I believe that those who build these platforms have a responsibility to change them. How, when, and where is yet to be determined. So listeners, this was all about the documentary The Social Dilemma. But there are many more documentaries to watch. So what are you waiting for? Log into Netflix and happy binge watching. On OTT platforms, why should the city find explained and who all can see this? And what about the screen time? Well, the screen time has been getting a bad reputation these days. Even the screen times in our lives increases by leaps and bounds, and the documentary talks about the same. It's a must for everyone, especially the parents and the educators, so that they can understand how does a team's brains operate. The mind is one of the topics that is always confusing. Is it the children who are mediocre, or is it we, the adults? The mystery is still unsolved. And if you want to declutter your mind, the documentary The Mind Explained will help you to take a step back from all the stress. And being a kindergarten teacher, I had a really tough time understanding how the brain processes. But then the question arises, why do teenagers act like teenagers? What's your opinion about it? The documentary helps the audience to understand the real life change in emotions and decision-making skills. And if this documentary would have released when I was a teen, I would have not had a tough
what you have just said, but I have heard that men are smarter than women. What's your perspective about this statement? Really, Shijay? Do you think so? God, please don't give the credit to any specific gender. It's all about amygdala. But Julian, you haven't answered my question. Are men more tech-savvy than women? You know, Shijay, man and woman have same anatomy of brain. The mind explain tells us about the teenagers' underdeveloped frontal cortex and hyperactive amygdala, which can make us very anxious for our time spent on devices. Well, Julian, that's something neuroscience experts will definitely agree with. Last but not the least, you have any message to share with our audience? Oh yes, children, I would love to. If you find yourself going down to the rabbit hole of anxiety, remember, our minds are capable of great things, but they can also undermine our best intentions. Thank you so much, Miss Julian. We have learned a lot from you today. And for a deep understanding of the mind and human condition, use your free time wisely. Time to wrap up the show. See you tomorrow. Representing India, and I'm here to present my views on achieving SDG 13 on behalf of India. Dear fellow friends, floods, tsunami, famine, global warming. Do these sounds familiar? I'm sure you must have heard about these issues time and again. But what are we doing to avoid such incidents? Yes, today we are talking about SDG at international level. But let us first see where we stand in regards of global climate action in India. The country had taken conscious steps and had made remarkable progress in renewable energy transition. India is actively collaborating with international platforms like CTRI, showing its commitment towards global climate action. But just few people's commitment will not help to achieve SDG 13. India is a country with a population of 2 billion, and together we need to join our hands to achieve SDG 13. Let me shed some light on the way forward. I agree, it would be a Herculean task, but it's not unachievable. We need to clearly identify priorities and have locally relevant people-centric development policies, both at individual level as well as government level. We need to create awareness on climate change and adaptation. To achieve SDG Goal 13 in India, a comprehensive approach is necessary. This includes establishing a robust policy framework that integrates climate consideration across technologies and conservation practices can significantly reduce greenhouse gas emission. Sustainable transport solutions are crucial, including investment in public transportation system and promotion of electric and hybrid vehicles. Climate adaptation should be mainstreamed into development planning with a focus on climate resilient infrastructure, early warning system, climate risk assessments, and nature-based solutions. Financial mechanisms such as mobilizing funds, including exploring of green bonds and exploring public-private partnership, are critical to supporting climate action. So, stakeholder engagement and awareness are the key, involving communities, civil societies, organizations, and private sectors in climate action initiatives. Public awareness campaign, education programs, and participatory decision making foster a culture of sustainability and collective action. Ladies and gentlemen, to achieve SDG Goal 13 in India requires a united and determined effort from all sectors of societies. Let us embrace these strategies together and combat climate change, mitigate its impact, and secure a sustainable future for our generations to come. By taking those steps today, we can create a thriving, resilient, and environmentally conscious India. Thank you. जब सम्राट अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म को चलाया गया था। दीन इलाही धर्म भारतीय इतिहास का एक
महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक सामान्य धार्मिक आंतरिक विद्या का प्रयास था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य और सामरिक एकता को प्रोत्साहित करना था। इस धर्म के सिद्धांतों में विविधता का महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर की इस नई धार्मिक अवधारणा ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच सामंजस्य और समरसता का माहौल बनाया और लोगों में एकता का पाठ पढ़ाया। हालांकि दीन इलाही धर्म का प्रभाव लंबे समय तक स्थायी न रहा। यह धर्म बाद में जहांगीर और अहमद शाह के शासनकाल में धीरे धीरे अस्थायी हो गया और अकबर की मृत्यु के बाद लगभग समाप्त हो गया। किंतु क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे ही देश नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को दीन इलाही धर्म की आवश्यकता है? आज ईश्वर द्वारा बनाया गया है यह सुंदर संसार धर्म के नाम पर बंटवारे, दंगे, खून खराबे से कुरूपता को प्राप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में इस जगत को दीन इलाही धर्म जैसे धर्म को अपनाकर मानवता का सुंदर रूप धारण करना होगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इंसानियत का पाठ पढ़े और इस संसार को पुनः प्रकृति होने का, सर्वश्रेष्ठ रचना होने का गर्व प्रदान करे। नफरत से कुछ न मिला मोहब्बत से काम लो, नफरत से कुछ न मिला मोहब्बत से काम लो, जहाँ दर्द बांटा बार बार प्यार का नाम दो। जब छोड़ो नफरत को बांधो प्यार के फंदे, अब छोड़ो नफरत को बांधो प्यार के फंदे, आओ मिलकर बनाए यह दुनिया एक जन्नत के रंग में। धन्यवाद। तब हम पर यह प्रश्न चिन्ह क्यों कि हम हमारी संस्कृति को संरक्षित रख पाएंगे कि नहीं? इस धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित हस्तांतरित कर पाएंगे? ऐसा प्रश्न क्यों? क्या इसीलिए कि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर निरंतर आकर्षित होकर अपनी मूल संस्कृति को भूल रहे हैं? आज हम एक बार पुनः अपनी संस्कृति को विरासत रूप में संजोना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पुनः ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता है जिन्होंने समय समय पर संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देकर राष्ट्र का नवीन निर्माण किया है। बात उस समय की है जब संपूर्ण विश्व अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहा था और हमारा देश विश्व गुरु के रूप में चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। उसी समय एक दैत्य सूर्य रूपी महान गुरु चाणक्य का उदय हुआ। मैं नताली उस समय की साक्षी बनना चाहती हूँ जब तत्कालीन विरासी राजा धनानंद के द्वारा अपमानित गुरु ने एक स्वराज्य की रूपरेखा तैयार की, जिसमें राजा, उसके कर्तव्य, देश की अर्थव्यवस्था व प्रजा की समस्या आदि बातों का एक ऐसा विधान बनाया जो आगे चलकर आज का संविधान बना। मैं उस पर में जीना चाहती हूँ जब एक शिक्षक जो स्वयं राजा बन सकते थे, परंतु वह राष्ट्र प्रेम हेतु सम्राट निर्माता बने। आचार्य ने एक सामान्य से बालक चंद्रगुप्त को न्याय प्रियता का खेल खेलते हुए देखकर उसमें भावी राजा के लक्षण देख उसे चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रण किया। यह एक शिक्षक का प्रण था। राजा बनने की इस यात्रा में जब चंद्रगुप्त दुर्बल हो जाते तो मनोबल बढ़ाते हुए चाणक्य कहते कि चंद्रगुप्त, अमृत की इच्छा रखने वालों को जीवन में विषपान भी करना पड़ता है। सामर्थ्य ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु का द्योतक। तुम्हें दुर्बलता छोड़कर मृत्यु से खेलना सीखना होगा। इस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को काल का आह्वान करना सिखाया और अंततः वह चक्रवर्ती सम्राट बने। काश मैं भी इस गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकती और मानव जीवन के मूल्यों को समझकर राष्ट्र
राष्ट्र के लिए इस शाहीन राजा के समक्ष जान का महत्व बताते हुए कहा कि विषाक्त अप्य अमृतम ग्राह्यम मेद्या कांचनम निचाथ अपि उत्तमाम विद्यार्थी रत्नो दुष्कराथ अपि। अर्थात हमें हमेशा अच्छे ज्ञान व अच्छी वस्तुओं की ओर आकर्षित होना चाहिए। यदि सोना गंदगी में भी गिरा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी पुल में चल रहा हो और आपको ज्ञान देना चाह रहा है तो उससे ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हर स्थान पर काम आता है। जब जब देश पर असुरक्षा के बादल मंडराएंगे तब तक चाणक्य जैसे महागुरु बिजली बन इनसे टकराएंगे। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु बिना ज्ञान न होत है, गुरु बिना दिशा अजान। संसार के सभी गुरुजनों को मेरा शत शत प्रणाम। धन्यवाद। आजाद भारत, क्या ऐसा ही भारत चाहिए था हमें? आज हमें अपनी ही माटी में आतंक की साए में जीना पड़ रहा है। पर मैं अभागी, मेरा ना तो कोई देश है और ना कोई अपना, बस एक ही नाम है, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी। कोई बताए मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे शांति मिले? अब समय आ गया है कि जब हे मानव तू मनुष्य बन और मानवता का पाठ पढ़। इतिहास गवाह है कि अभिलाषा और स्वार्थ ने अभिमान को ही जन्म दिया। बात उस समय की है जब राजकुमार अशोक मौर्य वंश का तीसरा सम्राट बना। उसके पिता की उपेक्षा ने उसे क्रूर बना दिया था और इसी क्रूरता का उसने ऐसा आतंक फैलाया कि चंडाशोक कहलाया। अब उसकी लालसा कलिंग पर अधिकार की थी। कलिंग राज्य को स्वतंत्र पाकर ललकारा अशोक ने उसे गर्भ में आकर। फिर हुआ इंसानियत का दिल दहला देने वाला कलिंग का युद्ध। अंततः कलिंग के राजा की तलवार अब उसके हाथों में थी। कलिंग राज्य धीर था उसके, पर ठिठक गया उस जीत को पाकर। देख निर्दोषों का रक्तपात, दिखते परिजन करते विलाप। न जाने वो जीत थी कैसी, न जाने वो जीत थी कैसी। बस एक अभिलाषा के प्यास में इतना नरसंहार। बाह्य युद्ध तो समाप्त हुआ, पर उस युद्ध का क्या जो उसके अंदर मन का था, जहाँ मृत लोगों की आवाजें उसका हृदय विदीर्ण कर रही थी। अब जीत कर भी हारा बैठा था नया कलिंग का राजा। अब आप ही सोच रहे होंगे आज हम इस काले अध्याय की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे उस काल में राज्य लूटे जाते, स्त्रियां लूटी जाती, वैसे ही आज समूचा विश्व देख रहा है कि जहां रशिया और यूक्रेन के वर्चस्व की लड़ाई में बेगुनाह और मासूमों की बलि चढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मानवता को शर्मसार करने वाली घृणित और दरिद्र की घटना मणिपुर में घटी। आज भी पूरा विश्व घृणा और वैमनस्य की आग में दहक रहा है। मैं पलक कुमारी इतिहास के उन क्षणों में जीना चाहती हूँ जब सम्राट अशोक के हृदय में मानवता के फूलों ने खिलना आरंभ किया। अब नहीं साम्राज्य तृषा, ना युद्ध विजय की दिशा, किए है कितने अपराध, कर रहा अशोक परिताप। मित्रों, अब उसी क्रूर अशोक ने आने वाली पीढ़ी के लिए शिलालेखों पर यह संदेश लिखवाया कि दूसरा संप्रदायों का आदर करके ही स्वयं की उन्नति संभव है। उन्होंने मानवता के रास्ते पर चलकर यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी जीत प्रेम की ही होती है। यह अशोक का नया अवतार था जिसने चंडाशोक से चक्रवर्ती सम्राट होने तक का सफर तय किया। देवों के प्रिय अशोक की तो मृत्यु हो गई, परंतु उनके महान विचार आज हमारे बीच में कहीं तिरंगे का चक्र तो कहीं 4 सिंह मुंह वाले राष्ट्र चिन्ह सत्यमेव जयते के रूप में दिखाई देते हैं। यह तो इतिहास के सुनहरे पल थे, परंतु मैं कब तक आस लगाऊं? नई सुबह के इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई हैं। क्या फिर किसी ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का नया अवतार होगा जो हमारे जीवन में उजाला लाए? नई सुबह के
कविता का आरंभ करते हैं। विश्व युद्ध की आहट को सुन, सबके सब है देश सशंके। अरे विश्व युद्ध की आहट को सुन, सबके सब है देश सशंके। कहीं चल रही क्रूज मिसाइल, अरे कहीं चल रही क्रूज मिसाइल, कहीं बरस रहे बम और गोले, अरे कहीं बरस रहे बम और गोले। देश तबाही का ये मंजर, अरे देश तबाही का ये मंजर। विश्व मानव क्या कर बोले, अरे विश्व मानव क्या कर बोले। मानव का दुश्मन बन बैठा, अरे मानव का दुश्मन बन बैठा। खुद को श्रेष्ठ समझता मानो, अरे खुद को श्रेष्ठ समझता मानो। जाने लील रहा है सबकी, अरे जाने लील रहा है सबकी। जैसे हो कोई वैशी दानव, अरे जैसे हो कोई वैशी दानव। चारों ओर बिखरती लाशें, अरे चारों ओर बिखरती लाशें। चिंता बचपन घुटती सांसें, अरे चिंता बचपन घुटती सांसें। बहुत विभत्स दृश्य है, अरे बहुत विभत्स दृश्य है। फिर भी पल पल जाने है कोई जो रोके इसको, अरे क्या कोई कहेगा युद्ध विराम। अरे है कोई जो रोके इसको, क्या कोई कहेगा युद्ध विराम। या मासूमों का खून बहाकर युद्ध चलेगा आवीरान। अरे या मासूमों का खून बहाकर युद्ध चलेगा आवीरान। सब कुछ खत्म होगा तब शायद, अरे सब कुछ खत्म होगा तब शायद। निकलेगी मन की भड़ास, हाँ हाँ निकलेगी मन की भड़ास। घोर निराशा के इस युग में, अरे घोर निराशा के इस युग में फिर भी बची हुई है आस, अरे फिर भी बची हुई है आस। जय और विजय किसी की होगी, अरे जय और विजय किसी की होगी। मानव की निश्चित है हार, अरे मानव की निश्चित है हार। लड़कर भला हुआ है किसका, अरे लड़कर भला हुआ है किसका। चाहे सभी अमन और प्यार, अरे चाहे सभी अमन और प्यार। जब तलक हो एक भी विकल्प, युद्ध से बचना है, अरे जब तलक हो एक भी विकल्प। युद्ध से बचना है। बिना लड़े ही जीत जाए इतिहास ऐसा रचना है, अरे बिना लड़े ही जीत जाए इतिहास ऐसा रचना है। युद्ध चाहने वालों जरा कुछ सोच कर बातें करो, अरे युद्ध चाहने वालों जरा कुछ सोच कर बातें करो। युद्ध से बस होगा हासिल, अरे युद्ध से बस होगा हासिल। लाशों का ढेर ओढ़े कफन, अरे लाशों का ढेर ओढ़े कफन। मातम ही मातम होगा, अरे मातम ही मातम होगा। खुशियाँ होंगी सब दफन, अरे खुशियाँ होंगी सब दफन। रास्ता खोजो वही जो बच जाए हम टकराव से, अरे रास्ता खोजो वही जो बच जाए हम टकराव से। मिलके ही चलते रहे, ना रू हो बिखराव से। अरे मिलके ही चलते रहे, ना रू हो बिखराव से। लड़कर भला हुआ है किसका, अरे लड़कर भला हुआ है किसका। चाहे सभी अमन और प्यार, अरे चाहे सभी अमन और प्यार। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति। देश में सुप्रभात एवं जय हिंद। मैं अंशाधर कक्षा 6 का छात्र अपने कुछ मित्रों के साथ आपके समक्ष विश्व शांति का संदेश लेके आया हूँ। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि युद्ध अब बहुत हुआ, अब हम सब विश्व शांति की ओर अग्रसर हों। मैं एक ऐसी कविता लिखूं जिसका नाम न हो कोई और, कोई रंगत संगत सार ना हो। कविता की लिखावट में कल और आज का संसार ना हो। अगर मुझको बस बात इतनी सी ही कहे, जो भी रहे जहाँ भी कहे सबका होकर रहे। कोई लड़ाई ना बढ़े, कोई युद्ध ना हुआ। हम खुद ये समझ जाए बेशक बीच हमारे कोई बुद्ध ना हो। अब मेरे कहने से फर्क नहीं है पड़ता कोई, और ना ही वक्त को बदल सकता मेरा। फिर भी हम सब मुक्त मन से खुला सोचते, हाथ बढ़ाते मन की
तो एक ही हो सकते, दो घर हो अलग तो भी आंगन तो रख सकते। है ये सब बातें सवालों जैसी और जवाब है आसपास ही। फिर भी उलझनों में फंसे, नफरतों में फंसे, फिर भी उलझनों में फंसे और नफरतों में फंसे हम कहाँ देख पाते विश्व को अपने परिवार की तरह। झगड़ पड़ते कभी धर्म पर और कभी न समझे किसी झूठे मर्म पर। हम ही तो दूरियां बढ़ा रहे, कभी जात पर तो कभी चेहरे के रंग पर। हम ही तो दूरियां बढ़ा रहे, जात पर तो कभी चेहरे के रंग पर। आओ चलो समझे हम, बेकार के जालों में ना उलझे हम। दीवार ना बनाए हम, पुल बनाए जिसके नीचे से बहे काफिले। देश बढ़ता तो दिल भी टूट जाते, जो रह गए इस उस पार अब कहाँ मिल पाते हैं। एक हिंद पाक की मिसाल से, एक बर्लिन की दीवार से, एक हिरोशिमा नागासाकी से, एक बच्चे के चेहरे से जिसका घर डहा बारूद से। सीख सकते हैं हम जो नहीं है करना और जो करना। बस इतनी सी बात समझ लो दुनिया वालों, औरों को मारकर हमें नहीं मरना है, औरों को मारकर हमें नहीं मरना है। धन्यवाद। और देशों के नाम की लड़ाई क्यों? आज आइए चलते चलते बात करते चले हमारे नए युग के कर्णधारियों की, जो आज दिशाहीन होकर अकेलेपन और अवसाद के शिकार होते हैं। और यहाँ मुझे एक बार फिर याद आते हैं ओशो, जिन्होंने जीवन में रचनात्मकता, स्वयं और प्राकृत से प्रेम तथा ध्यान देने का संदेश दिया था। और अंत में मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, गैर बराबरी और प्राकृतिक आपदा अर्थात दोहन के दौर में क्या आपको जो आप सभी को मेरा अभिनंदन। मेरे मन में एक और चिंतन सदा से चलता आ रहा है कि क्या जीवन की लंबाई में गहराई मायने रखती है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जीवन की कोई परिस्थिति आई हो और मन में सोची भाव आ गया हो कि काश अब वो शक्ति हमारी भी जुटे तो शायद वर्तमान में समाज का स्वरूप कुछ और ही होता। मैं आज इस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की बात कर सकता हूँ। उन्होंने भारत का वर्चस्व पहली बार दुनिया के आगे स्थापित किया। क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि यह गरिमावान व्यक्ति कौन है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद। मनुष्य का सबसे प्रखर बुद्धिजीवी, परंतु क्या हम अपने ज्ञान विवेक का उचित रूप से उपयोग कर पाते हैं? मेरी समझ से नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज की तकनीकी युग में शिक्षा प्रणाली सभी की मांग को पूरा कर पाती है? विवेकानंद जी आपने हमसे व्यवहारिक शिक्षा का प्रबल समझा, जिस संशोधित शिक्षा प्रणाली बात आज हम कर रहे हैं, इसे प्रश्न में आते आते 75 वर्षों का लंबा समय लग गया। यदि स्वामी जी होते तो निश्चित रूप से शिक्षा का रूप बदला होता और भारत बहुत पहले ही पुनः गुरु के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका होता। इतनी विडंबना ईश्वर ने सारे मनुष्य को एक समान काया देकर धरती पर भेजा, परंतु अज्ञानी मनुष्यों ने धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर स्वयं का बंटवारा कर लिया। आज आरक्षण भयावह दानव के रूप में चुका है, जो विकर्म युवाओं का भक्षण किया जा रहा है। अयोग्य व्यक्ति आरक्षण के नाम पर उसका लाभ उठा रहे हैं। परिणाम स्वरूप युवाओं में हिंसा, आक्रोश की स्थिति बढ़ती जा रही है और वह पस्त भटककर बुराइयों की ओर बढ़ रही है। स्वामी जी का विचार यह था कि हर व्यक्ति की उसकी योग्यता व गुण के आधार पर ही उन्नति की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी देश की स्वयं को समान समझेंगे। देश दुनिया की बुद्धिजीवी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु दूसरे की तरक्की आज भी हमारे यहाँ बच्चों को जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया के देश जो स्मार्ट नहीं होकर युद्ध को मात्र सहारा बनाकर लाखों निर्दोष लोगों की आहुति देते हैं, कहाँ तक उचित है? क्या युद्ध ही किसी समस्या का हल है? आज ये स्वामी जी के जीवन का वो अमृतांग याद आता है, जब विदेशी धरती पर शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने अमेरिकियों को मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों का संबोधन किया और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। यदि आज भी होंगे तो हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष को हल निकाल जा सकता है। किसी भी देश की उन्नति के आधार पर युवा होता है। मुझे लगता है आज समाज में आधार है उस प्रेरणा त्याग शक्ति का जो युवाओं का सही मार्गदर्शन करके उनकी सोच का उपयोग मानव कल्याण व देश की उन्नति में कर सकते हैं।
अंततः हमें विश्राम दीजिए। तो आइए मिलकर एक ऐसी जगह लाए जहाँ सब स्वयं को समान समझे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय